Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel M for Mathematician. So yesterday we have discussed about the worked example 4, 5 practice nows, and we have discussed about the discount. So now today we are going to discuss goods and service tax. So the various types of tax collected by the Singapore government go toward the funding of the government expenditure such as national defense and education. So yes, basically government collect the taxes for the expenses of the building road, or we can say that on the education purpose. So it would be utilized for the security of the country as well. So yes, example of taxes include goods and service tax, and it is GST and income tax. So GST is basically paid in addition to the price of the goods and services. सो GST जो है इसको यूजली हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस. एंड GST जो था ये सिंगापुर में 1994 में 3% जो थी इनकम उस पर लगता था. देन ये 2003 में 4% हुआ, देन 2004 में 5% एंड देन 2007 में 7%. सो GST को हम वैल्यू एडिड टैक्स या VAT जो है स्टैंड फॉर वैट भी कहते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्कड एग्जाम्पल related to this GST. So yes, a piece of furniture costs $640 before GST. So its actual price is $640. Now assuming that GST is a 7%, calculate the total amount of money Raj has to pay for the piece of furniture. So yes, GST payable. Now right there, the original cost is $640 and GST is almost 7%. So we find GST payable and then we add the original amount with that GST payable. Okay, so right there it is 7%. So when we just remove the symbol of or remove the percentage, we have got 100 divided by 7 and 7 divided by 100, and we have of course multiplied by the original price, which is $640. So we've got 44.80 $44.80. Now we'll add the GST payable with the actual or original cost of the furniture. So yes, it is $640 plus $44.80. So we have got answer as $684.80. So now we are going to discuss practice now 6. Okay, so the cost of article is $85 in question number 1 before GST, and GST is 7%, so we have to find the total amount of money a man has to pay. It is solved on the same line as we have solved for example 6. So yes, what we have done, we have just multiplied the percentage of GST. So it is 7% and we have multiplied it with actual price. So we remove the percentage and it is 7 divided by 100. So after solving it, we have got the answer as $5.95. So now total amount of money is basically the actual amount and GST payable. So we have got actual amount as $85 and GST payable is 9.95. So our total amount of money is 90.95 with the tax. Okay, so now we are going to discuss question number 2 of practice now. Okay, in this question they are saying that the printer is sold for $642 inclusive of 7% GST. So yes, in this question they have given us the selling price. Find the mark price of the printer. So right there in this question we have to find the actual price. Okay, the price before that GST payable, because they have given us the price, the selling price basically, which have GST included in it. So yes, we have to find the mark price for it. Okay, so yes, they are saying, okay, we know that 107% of mark price equal to the total price paid. As we know the selling price जो कि हमारे पास $642 थी, and we know कि इस पे 7% GST है, और obviously we know that the basically
7% of GST multiplied by that mark price is equal to selling price. We know this. So yes, now we know that obviously we have solved we sell any of the product on 100% of that price. Okay, so when they have mentioned that we have 7% GST, so 100% plus 7% is obviously 107%. when we remove this percentage तो हमारे पास 100 डिवाइड होगा, then we solve it, we have got 1.07 multiplied by marked price. so यहाँ ये multiply हो रहा है, यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा. we have got marked price as $600. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास total amount payable. These are the formulas you have to learn, okay, or memorize it. Total amount payable is equal to mark price minus discount plus service charge plus GST payable. Then there comes the formula of service charge, then there comes the formula of GST payable. So we have to use these formulas while doing any of the solution. Okay, so let's utilize these formulas in worked example 7. Okay, so they are saying that Mr. Wong has dinner with his family at a restaurant which offer basically 10% discount, and the mark price of that food is, obviously they have mentioned it as $100, and the service charges of 10% and GST of 7%. So we have to calculate the total amount. So यहाँ पर हमें बेसिकली टोटल अमाउंट ऑफ मनी मिस्टर वोंग को जो पे करनी पड़ेगी वो फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी का फॉर्मूला है, हमारे पास ये फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस सर्विस चार्ज प्लस GST पेएबल. सो अब हमारे पास मार्क प्राइस तो $100 है, हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे, सर्विस चार्ज फाइंड करेंगे और GST पेएबल. अब डिस्काउंट का फॉर्मूला भी हमारे पास है, सर्विस चार्ज का भी है, GST पेएबल का भी है. तो चलें हम पहले डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं. अब हमारे पास जो डिस्काउंट का फॉर्मूला है वो है परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट और मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%. सो व्हेन वी सी कि हमारे पास जो परसेंटेज डिस्काउंट है वो 10% है, एंड यहाँ पर हमारे पास मार्क प्राइस गिवन है, हमारे पास डिस्काउंट नहीं गिवन है, हमें डिस्काउंट फाइंड करना है. यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के ये डिवाइड हो जाएगा, एंड ये मार्क प्राइस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी हैव गॉट द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट. अब ये 10% जो है वो परसेंटेज से कैंसिल हुआ, 10 डिवाइडेड बाय 100, 0.1 इंटू 100%, जो $100 जो मार्क प्राइस थी वो इज इक्वल टू डिस्काउंट. सो डिस्काउंट हमारे पास आ गया है $10. ओके, हमने डिस्काउंट फाइंड कर लिया. अब हमने सर्विस चार्ज फाइंड आउट करना है. सर्विस चार्ज में हमारे पास जो है सर्विस चार्ज इन परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. सो सर्विस चार्ज इन परसेंटेज जो हमारे पास गिवन था वो था सर्विस चार्ज ऑफ 10%. सो यस, 10% मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस $100 माइनस डिस्काउंट आया हमारे पास $10. ओके, सो अब हमने सिंपली परसेंटेज को हटाया तो वी हैव गॉट 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय $100 माइनस $10. सो इट वुड बी आफ्टर सॉल्विंग $9. Okay, now we have to find GST payable. So firstly in the formula right there, this is basically GST in percentage, which is 7%. Look here, GST is at 7%. Multiplied by mark price minus discount plus service charge. So mark price is $100, discount is minus $10, then serving charge is $9. So after removing that percentage we have got 7 divided by 100. So after solving it we have got $6.93. Now we have to just apply the formula of total amount payable. So it is mark price minus discount plus service charge plus GST payable. अब हमने सब की वैल्यूज़ तो फाइंड कर लिया. मार्क प्राइस $100 है, डिस्काउंट हमारे पास $10 आया, सर्विस चार्ज $9, देन GST पेएबल $6.93. हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट पेएबल आ गई जो कि है $105.93. अब वी हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस नाउ 7. अब इसमें देखें बेसिकली यहाँ पर नोरा ऑर्डर अ बॉल ऑफ टॉम यम सॉप. सो
15% यहाँ पे डिस्काउंट है, मार्क प्राइस जो है उसकी $6.90 है, देन सर्विस चार्ज है 10% का, GST है 7% का, तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ मनी फाइंड आउट करना है। तो ये वर्कड एग्जाम्पल 7 की तरह ही सॉल्व होगा। ओके तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट पेएबल फाइंड आउट करनी थी। हमें पता है इसका फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस सर्विस चार्ज प्लस GST पेएबल। सो अब हम वन बाय वन ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। मार्क प्राइस हमारे पास गिवन है, हमें डिस्काउंट फाइंड करना है, सर्विस चार्ज फाइंड करना है एंड GST पेएबल फाइंड करना है। अब डिस्काउंट, सर्विस चार्ज एंड GST पेएबल की परसेंटेजेस गिवन है। ओके तो इनका फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखें, मार्क प्राइस हमारे पास $6.90 गिवन है, देन परसेंटेज डिस्काउंट गिवन है। हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। सो 15% परसेंटेज डिस्काउंट है। इस फॉर्मूले से बेसिकली हमें डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो हम कन्वर्जन करके बेसिकली डिस्काउंट का फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ मार्क प्राइस, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, यहाँ ये मार्क प्राइस डिवाइड हो रही है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। अब परसेंटेज डिस्काउंट 15% था डिवाइडेड बाय 100%। मार्क प्राइस जो थी हमारे पास थी वो $6.90, तो हमने लिखी परसेंटेज कैंसिल हो गया, परसेंटेज से ये आ गया 0.15 मल्टीप्लाई में $6.9। सो डिस्काउंट आ गया $1.035। उसके बाद हमारे पास सर्विस चार्ज का फॉर्मूला है सर्विस चार्ज इन परसेंटेज मल्टीप्लाई मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो 10% था, 10 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। मार्क प्राइस $6.90 है, देन डिस्काउंट है $1.035। सो ये 0.1 हो गया, इसको सॉल्व किया तो वी हैव गॉट सर्विस चार्ज है $0.5865। ओके सो GST है हमारे पास, GST इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस सर्विस चार्ज। यहाँ पे मार्क प्राइस $6.90 थी, ये 7% था GST इन परसेंटेज, देन मार्क प्राइस $6.90 थी, हमारे पास डिस्काउंट आया है $1.035 एंड सर्विस चार्ज है 0.5865। सो यहाँ पे हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, 6.90 माइनस 1.035 प्लस 0.5865। सो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज हटा, 7 डिवाइडेड बाय 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6.4515। सो इसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे 0.07 से, तो हमारे पास आ गया आंसर 0.451605। सो अब हमने टोटल अमाउंट पेएबल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है और हमारे पास टोटल अमाउंट पेएबल आ जाएगी। यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट पेएबल का फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस सर्विस चार्ज प्लस GST पेएबल। तो सारी वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं, हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो $6.9 माइनस 1.035 प्लस 0.5865 प्लस 0.451605। सो वी हैव गॉट $6.903105। So total amount payable is $6.90. Now we are just going to add question number 2 of this practice now. Okay, they are saying कि Carol ordered one set meal at our restaurant. So it has 20% discount, service charge of 10%, GST of 7%, and he pays the total amount of money as $23.54। सो हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट पेएबल भी बता दिया और बाकी सब कुछ भी हमें जो है बाकी सब की परसेंटेजेस बता दिए। हमें बेसिकली यहाँ पे मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स सी कैसे होता है ये सॉल्व। यहाँ देखें मेरे पास मार्क प्राइस अननोन था, मैंने कहा कि मैं मार्क प्राइस को M से रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ। और परसेंटेज डिस्काउंट 20% आया है। परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला डिस्काउंट मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो भी अननोन है, मार्क प्राइस उसको मैंने M कह लिया क्योंकि ये भी अननोन है, मुझे फाइंड भी ये करनी, इसे मैंने M कह लिया। तो मेरे पास ये यहाँ पर आके 100 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया एंड M मल्टीप्लाई हो गया, तो डिस्काउंट जो है वो आ गया 0.2 इंटू M। तो मेरे पास डिस्काउंट आ गया 0.2 M। नाउ हमें सर्विस चार्ज फाइंड आउट करना है।
सो सर्विस चार्ज है मेरे पास, सर्विस चार्ज इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो सर्विस चार्ज जो है वो 10% था, मल्टीप्लाई बाय मेरे पास जो मार्क प्राइस है वो मैंने एम से रिप्रेजेंट किया, माइनस डिस्काउंट आया गया है 0.2 एम। सो ये 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100, 1 एम माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2 करें तो 0.8 एम आ जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो सर्विस चार्ज आ जाएगा 0.08 एम। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है जीएसटी पेएबल। जीएसटी इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस सर्विस चार्ज। सो जीएसटी इन परसेंटेज इज 7%, फिर मार्क प्राइस एम थी माइनस 0.2 एम डिस्काउंट आया प्लस 0.08। हम कर लेंगे 1 माइनस 0.2 प्लस 0.08, सो हमारे पास आ जाएगा 0.88 एम। सो यहाँ हमारे परसेंटेज हटाया तो 7 डिवाइडेड बाई 100 0.07 मल्टीप्लाई बाय 0.88 एम। सो ये आ गया 0.0616 एम जीएसटी पेएबल। अब टोटल अमाउंट पेएबल जो है उसका फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। टोटल अमाउंट पेएबल हमारे पास थी $23.54, देन मार्क प्राइस एम से माइनस 0.2 एम डिस्काउंट प्लस 0.08 एम सर्विस चार्ज प्लस 0.0616 एम जो था वो जीएसटी पेएबल था। देन हमने 1 माइनस 0.2 प्लस 0.08 प्लस 0.0616 ये किया तो हमारे पास आ गया 0.9416, और ऑब्वियसली जो वेरिएबल था वो मार्क प्राइस एम था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया तो एम हमारे पास आ गई $25। सो मार्क प्राइस हमारे पास आ गई है $25। दिस इज़ ऑल अबाउट वर्क, सॉरी प्रैक्टिस नाउ 7। सो अल्लाह हाफिज़।